So hi everyone, welcome to you all in my another video, and today video again for the pharmacy technician if you want to apply in Australia. So right now is a final opportunity for you, you can apply because the right now the South Australia is open. And so the requirement is that if you have a diploma in pharmacy, you did your B Pharm, M Pharm, Pharm D, plus you have 1 year experience in working as a pharmacy technician in hospital or in the community pharmacy. Community pharmacy means any medical store. If you have experience 1 year, and if you have a 65 points, and that I already told you in my previous video how you can calculate your points. And another requirement, that English requirement. So if you have a you're ready in English, like you did your PT or IELTS or OET, and if you have a minimum 6 band requirement in IELTS and equivalent to another exams, so you can file this visa. And but what I'm saying, this is final opportunity because this pharmacy technician, they always close. Past many years they always open for only for pharmacists. So if you want to work as a pharmacist, so I already make another video for that. You need at least B Pharm or Pharm D or M Pharm, and you register pharmacy in your country, and you have English requirement, so you have to go for CAPS exam, then you can file your visa for pharmacy. So we are talking here the pharmacy technician. Pharmacy technician, they close past many years. Recently they open because due to the COVID. Right now they need for a lot of pharmacy technician. You can imagine that one pharmacy have at least 1 or 2 pharmacists, and 5 to 6 they keep like as assistant pharmacist or pharmacy technician. So they are helping them to running a pharmacy in Australia. So my name is Dr. Akram Ahmed. I'm a pharmacist and lecturer in Australia. I always make videos for you. Please like and subscribe my videos so I can make videos for you. So now we are going to start to see on the screen. So I will discuss in all the detail what you need to do to come to Australia. मेक द वीडियो. तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर. तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप, और मैं हूँ यहाँ समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया. मैं सिडनी में हूँ, और अभी हम बात करने वाले हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेट है. अगर आप देखें, इसकी कैपिटल बेसिकली एडिलेड होती है. तो यहाँ पर राइट नाउ जो है ओपन है फार्मेसी टेक्नीशियन. तो फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. और अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया. और साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 65 पॉइंट आपके होने चाहिए, और आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, और आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर 190 एंड 491, है ना. तो ये देखिए, अगर ये जो लाइन है ये वाली जो है इस 190 के लिए है, और ये है 49 में. दोनों में डिफरेंस ये है कि 190 बेसिकली ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा है, और in that particular state you can live and work anywhere, and they will give you 5 point, for example, if you have 70 point, 5 point given by the state, then your application will be assessed on 75 points. But in 491 visa is the condition that you have to live and work in regional area, and they will given to you 15 additional points. So if you have 70 point, 15 point given by the state, now you have 85 point. 85 points is enough point to get a visa in Australia. So this is how work in Australia. तो इन्होंने बहुत सारी कंडीशंस लगाए हुए यहाँ पर 190 में. बेसिकली दे आर थिंक करंटली वर्किंग मतलब आप आगे करंटली ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में आप हैं, या आप ऑलरेडी यहाँ पर जो है आप वर्क कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए है ये ना. और 491 एक उन्होंने कहा है कि ये वीजा उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो टैलेंट एंड इनोवेशन प्रोग्राम. आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आइडिया है इससे रिलेटेड, जैसे कि ना, जैसे कुछ जो है कोई स्टार्टअप का कोई आइडिया है, स्टार्टअप से अगर आप प्रेजेंट बनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए वीजा है. मगर आगे इन्होंने क्या लिखा है और कौन कौन सी जगह पे ये जो है, अगर आपने वहां से स्टडी किया है तो उन लोगों के लिए है ये, और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये. दैट्स व्हाई मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप यहाँ पढ़ने आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप ऐसा स्टेट चूज करें कि जहाँ पर वो आपको जो है they can sponsor you, for अपने स्टूडेंट के लिए they can sponsor you. बहुत सारे स्टेट करते हैं, बहुत सारे स्टेट नहीं भी करते. जैसे कि NSW अपने स्टूडेंट को कभी भी जो है वो नहीं करता. मैं भी NSW में ही हूँ, तो इसलिए मुझे पता है. तो
चलिए अभी आगे देखते हैं कि वैसे तो उन्होंने कंडीशंस लगा रखी हैं, मगर यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि इफ यू आर इन ऑफशोर, इफ यू आर इन योर कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, व्हाटएवर योर कंट्री, एंड यू आर लुकिंग टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, so you can only file this visa only for South Australia. The other states mostly they close, and some of them they are saying that you must live in and working in Australia, then only you can apply. So उस वीजा के लिए आप लोग एलिजिबल ही नहीं हैं। तो आप एलिजिबल हैं जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ आने के बाद, तो जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट बोल रहा है मिनिमम 6 होना चाहिए, और मतलब ये सॉरी ये बोल रहा है कि जो है रिक्वायरमेंट प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब आपकी जो इंग्लिश है 8 और 8+ है, 8+ हो जाएगी तो मतलब आपको 20 पॉइंट मिलते हैं, और आपके 7 है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं ना। तो अगर आपने 20 अगर आपके इंग्लिश में आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वीजा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं ना। और ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 65 पॉइंट्स पे आप लोग फाइल कर सकते हैं, और 49 वीजा को ही ये लोग बोल रहे हैं फाइल कर सकते हैं, और आप दूसरा वीजा आप नहीं कर सकते हैं। सबमिट रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेशन, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन योर नॉमिनेटेड। देखो इन्होंने मेन कंडीशन क्या लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए जो मैंने बताया था कि स्किल असेसमेंट जो है आपका हो जाएगा 1 साल के बाद, है ना। तो वो स्किल असेसमेंट तो पॉजिटिव आपकी आ गई, मगर ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे स्टेट में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं वीजा। अगर आपका उससे कम है तो फिर आप लोग जो है वीजा फाइल नहीं कर सकते हैं। और राइट नाउ ओनली जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया ने ही जो है ओपन किया हुआ है फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए, और टाइम टू टाइम में वीडियो बनाता रहता हूँ, कोई दूसरे अगर स्टेट अगर ओपन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी आज की डेट में, क्योंकि अभी हो क्या गया है कि देखो ये ईयर का एंड चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून, तो 1 जुलाई से जो है न्यू ईयर स्टार्ट हो जाती है वीजा के लिए। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का ये ईयर होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमेशा से, है ना। तो मोस्ट ऑफ द वीजा मोस्टली दे चुके होंगे, कुछ वीजा बाकी होगा। तो अभी हर कोई जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया को ही अप्लाई कर रहा होगा, और यहाँ पर जो है इतने वीजा होगा नहीं, तो उन्होंने कंडीशन बढ़ा दिया है कि भैया आपका जो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट 8 होना चाहिए, और आपका जो 8 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, तभी आप फाइल करेंगे ये वीजा, है ना। और इस बारे में आप अपने माइग्रेशन एजेंट से ही बात कर सकते हैं, या आप अपनी रिसर्च खुद से कीजिए, आप खुद से अपने वीजा फाइल कर सकते हैं। और ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।